नमस्ते, स्वागत है आपका। The topic for this video is how to perceive success. Now, why did I come to think of it? Let us understand that in today's world, we are exposed to many online trainers, coaches, and the internet has given us access to many success stories, which means हमारे आसपास कई बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटीज है, जिन्होंने लाइफ में सक्सेस अटेन किया है। तो हमें उनकी स्टोरीज जानने मिलती है इंटरव्यूज के थ्रू या उनके वेबिनार्स के थ्रू, एंड यू गेट टू नो how they have struggled in their life to attain that success. So this video is about how to perceive उनकी सक्सेस स्टोरी, किसी भी एक ट्रेनर की या कितने भी आप ट्रेनर्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हो, उसे कैसे परसीव करते हैं. So let me just share my window, let me share my screen right away, and here we are. All right, so first of all, what are success stories? Now, for this particular video, the success stories जो मैं जिनके बारे में सोच रही हूँ वो है ऐसे स्टोरीज ऐसे लोगों की स्टोरीज जिन्होंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. Those who have seen lots of ups and downs in life. They had failed somewhere, then they went a little ahead, again they failed, again they got some success, again they dropped, from that height, and again, after a lot of trial and error, finally they have become successful. Finally, they have reached their goal, and they are even getting more and more success now with time. They're earning money, fame, they're getting more popular. But uske pehle, there is a lot happening behind the screen जो हमें और आपको नहीं पता. So, what are the kind of experiences that these people could have gone through in life? फेलियर मीन्स एक्चुअली एग्जाम में शायद कोई फेल हुआ होगा. कोई भी थिंक ऑफ एनी सेलिब्रिटी जो शायद 8th में फेल हुआ है, 10th में फेल हुआ है, या कॉलेज में. देयर कुड बी ऑनलाइन ट्रेनर्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ फेलियर्स जो उन्होंने, फेमस या सक्सेसफुल पीपल ने एक्सपीरियंस किए हैं. दूसरा है उन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजंस लिया हो जिसकी वजह से उनके लाइफ पे, हेल्थ पे, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा हो. उन्होंने, they could have trusted the wrong people. Those people could have cheated them, and they would have experienced some kind of downfall in their life because of that. They could have had a broken marriage or a broken relationship. They could have experienced losses in business, as in, not only because of the above reasons, everything is fine in their life. Suddenly the market crashes. There is no other reason. So market crash hota hai, and poof, एक रात में everything gone. घर चला गया, बैंक बैलेंस जीरो, नेगेटिव, crores of rupees का कर्जा भी कैसे करे. These are the kind of failures जो उन लोगों ने experience किए हैं. Then लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा. बाकी सब ठीक है, लेकिन सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं. एक फिर शायद हेल्थ इश्यूज हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, खुद की हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से उनका अगेन बिजनेस या तो पढ़ाई भी हो सकती है, नॉट जस्ट बिजनेस, पढ़ाई उनकी बंद हो गई हो, या तो फिर किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी हो, या तो फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपने चॉइस के फील्ड को या करियर को चूज नहीं कर पाए हो, या तो फिर वो, they were hopping from one business to another. They went on changing many businesses, yet they could not get that kind of success, and they did not get that satisfaction that, I'm doing the right thing. So these are the examples of failures that people could have experienced in their life. Now, what it exactly means, it means any failure or downfall or situation, those negative situation that they have experienced. जो successful people है, success मिलने के पहले, if they have experienced any of these failures, they found a way to overcome it. यानी failure हुआ, पता है, शायद रोए, शायद डिप्रेस हुए, लेकिन उसमें से बाहर निकले. They found out a way, a strategy, they devised a way to come out of it. उन्होंने स्ट्रगल भी किया, लाइफ वाज नॉट इजी, उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया, और फिर कहीं जाके उन्हें सक्सेस मिला. सो आफ्टर गोइंग थ्रू अ स्पेक्ट्रम ऑफ challenges in life, afterwards they have succeeded.
सो दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली मीन कि सक्सेस स्टोरी कैसे बनी। इतने सब फेलियर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड्स फाइंड आउट किए, उसको ओवरकम किया और फिर कहीं जाके आपको सक्सेस मिला। सक्सेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट। अगर किसी भी स्टार को एक रात में सक्सेस मिला है, उस एक रात के पहले उन्होंने 10 साल 15 साल मेहनत की है। 5 साल बैठ के शायद अपने मसल से बॉडी बनाई है, 2 साल अपने इस पे डिक्शन पे काम किया है, लैंग्वेज पे, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया है। कुछ भी हो सकता है। कोई बिजनेस पर्सन है, उन्होंने शायद बहुत रिसर्च किया हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। वो दूसरे कंट्रीज में जाके लॉस भले एक्सपीरियंस किया, लेकिन अलग अलग जगह पे जाके देख के आए, सीख के आए, वो उन्होंने अप्लाई किया। और वो अप्लाई करते 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 फाइनली उनको आज सक्सेस मिला। तो एक रात में उनका प्रोडक्ट है या सर्विस है, अचानक से हिट हो गया। तो इट इज नॉट अचानक। वो अचानक के पहले पिछले 5-10 साल का आप स्टडी करो, रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कोई अचानक नहीं होता। सो हाउ टू परसीव, यानी हमने इतने लोगों की स्टोरी सुनी, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, वेरी शॉर्ट। अवॉइड कंपेयरिंग द सिचुएशन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगे कि कोई सेलिब्रिटी है जो 10th फेल है और आप भी 10th में हो, उसको उसका एक ही भाई है, आपका भी एक भाई है, और उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि भाई उस वो 10th में फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, या तो मैं 10th दूंगा ही नहीं। क्यों? उसने नहीं दिया, 10th नहीं दिया, 10th में फेल हो गया, फिर भी सेकंड ट्रायल में पास हो गया, फिर उसको सक्सेस मिल गया। उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा। इट डजंट वर्क दैट वेज। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर दैट पर्सन सिचुएशन विथ योर सिचुएशन, एंड डोंट कॉपी पेस्ट द रिएक्शन। अगर उनको 10th, सपोज उनको मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं है और उन्होंने अपने चॉइस से एग्जाम नहीं दी, दैट डजंट मीन कि आप भी चूज करो छोड़ना बिकॉज ही लेफ्ट। आपकी डिसीजन इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज किसी और ने उस सिचुएशन में वो डिसीजन लिया। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। मैंने एक बार कभी किसी कॉलेज के स्टूडेंट को सुना था ऐसे कहते हुए, उसने तो क्या, वो तो 10th पास भी नहीं है, अपन तो कॉलेज में आ रेला है ना, अपन तो देखना, अपन तो कैसा झंडा गाड़ेगा। सो आई जस्ट ओवरहर्ड, मेरे साथ डिस्कशन नहीं चल रहा था, बट इस बात में थोड़ा एरोगेंस दिखता है कि वो फेल हो गया, आप थोड़े आगे आ गए। यू डोंट हैव टू कंपेयर दैट। उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, एज सिंपल इज दैट। सो नाउ आप बोलोगे, अरे बाबा बहुत हो गया, हमको पता चल गया क्या नहीं करना है, मैडम अब बताओ क्या करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हाउ टू परसीव, यानी डूज, यानी व्हाट इज इट दैट वी शुड डू। One, we should learn the actual lesson. So from the failure to the success, there has been a journey. There has been some kind of curve. Learn the lessons from the curve. Dedication हो सकता है, focus हो सकता है, managing resources हो सकता है, सेविंग हो सकता है, कहीं किसी जगह में बिजनेस है तो स्पेंडिंग भी हो सकता है कि उसने पहले बहुत पैसे ही नहीं खर्च करते थे, फिर थोड़ा पैसा खर्च करना शुरू किया, तब उनका बिजनेस बेहतर हो गया। Then draw inspiration. Wow, he's done something wonderful. There is so much that I can learn. Then understand your environment and situation. Now, that person has experienced something 5 years, 10 years, or 20 years back. तो उनकी सिचुएशन एक अलग टाइम पे वैसी थी। टुडे यू आर इन अ डिफरेंट टाइम, सो योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन कैन नॉट बी द सेम व्हाट दैट पर्सन डिड। यू हैव टू डू इट लिटिल डिफरेंटली। अप्लाई द लर्निंग्स, जो आप मोटिवेशन हुए, जो आप कहीं से इंस्पायर हो गए, वो सब लर्निंग्स करके अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ना कि उनके डिसीजंस या उनके डायलॉग्स। उन्होंने ऐसे बोला तो मैं भी ऐसे बोलूंगा, उन्हीं ने डैड को बोला, डैड मैं तो घर छोड़ के जा रेला है तो मैं भी चला जाऊंगा। इट डजंट वर्क दैट वेज। वी डोंट नो व्हाट हैज, वी डोंट नो कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनकी मेंटल स्टेट क्या थी, उनकी फिजिकल इमोशनल स्टेट क्या थी। आपकी क्या है वो अलग होगी, आपको अलग एक्सपोजर भी मिला है, राइट? एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, accept that your success graph is going to be different than theirs. Everybody's success graph is going to be different. Even if you give the same recipe to 3 different people, it's going to taste different.
You give them the same kitchen, give them the same ingredients, give them the same spoons and everything, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा different होगा ही होगा. क्यों? Because that is how we are made. We are humans. We all are different. So हर एक का success graph अलग हो सकता है. You cannot compare yourself with somebody else. Even if there are twins, अगर कोई ट्विन्स, आपका कोई ट्विन है, किसी का ट्विन है, उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग होंगे. उनका कुछ ना कुछ तो अलग होगा. टेस्ट, चॉइस, इंटरेस्ट अलग होगा. यू कैन नॉट कंपेयर योर सक्सेस और योर फेलियर विद समबडी एल्सेस. किसी को 5 years में सक्सेस मिला, आपको शायद 10 years में मिल सकता है, 7 years में मिल सकता है, या 2 years में भी मिल सकता है. ऑफ कोर्स इट इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट? सो remember that you are unique. Embrace your uniqueness. There is nobody in this world like you. So it's good to learn from many people. In fact, I feel आप life में जितना learn कर सकते हो करो. Enroll yourself for courses. I'm personally undergoing a course in advanced voice modulation from a very senior trainer who's been training from the academy, Jinki Academy. I think he's been doing this from last 20 years plus. So I'm learning from that academy. मैं खुद अपने आप को आज भी improve कर रही हूँ. I'm learning something new. So likewise, learn different things from different people, but remember your life is unique. Your decisions are going to be unique. If you have to compare your performance with somebody, compare your success or your result with your efforts and your performance. Don't compare your success with somebody else's. That is it. This is all what I wanted to say. Aapko ye video kaisa laga? Do share your thoughts in the comments. Thank you so much for watching till now.